বাবর পুত্র হুমায়ুনকে জন্ম দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। এই কথা কে বলছেন? বিতর্কিত মন্তব্য। তারপর তিনি বলছেন এর ওর সঙ্গে জোট করছেন, কিন্তু কোনো জোট এবার কাজ করবে না। উনি চাইছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ভোট সেটা যেন কোনোভাবেই বিজেপিতে না আসে, সেজন্যই হুমায়ুন কবিরকে জন্ম দিয়েছেন উনি চাইছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ভোট তা হুমায়ুন কবির পাক। কিন্তু এবার এসব কোনো কিছুই কাজ করবে না। বাংলার হিন্দু জনতা এবার মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেবেন না। মুসলমানরাও মমতা ব্যানার্জিকে চিনে নিয়েছেন, ওরাও খুব অসন্তুষ্ট। তারাও এবার সরাসরি বিজেপিকে ভোট দেবেন। মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন বিজেপির এক নেতা। তিনি আরও বলেন, বাংলায় এবার মোদিজির শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। সারা দেশে মোদিজির শাসন রয়েছে, এবার বাংলাতেও মোদিজির শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। বাংলার মানুষ মোদিজিকে ভালোবাসেন। 26-এ বাংলা থেকে রাজ্যসভায় রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি। আর সংসদে পৌঁছেই বাংলার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নজিরবিহীনভাবে নিশানা করলেন তিনি। কি বলতে চেয়েছেন রাহুল সিনহা, শুনুন তার মুখেই। देखिए, बात यही है, हिंदू जनता इस बार ममता बनर्जी को वोट नहीं करेगी। मुसलमान भी बहुत नाराज मुसलमान है जो ममता जी को पहचान चुके हैं, वो भी इस बार वोट सीधा बीजेपी को करने वाला है। और इसी डर से बाबर पुत्र हुमायूं को जन्म दिया ममता बनर्जी, और इसके साथ उसके साथ गठबंधन कर रहा है, लेकिन कोई गठबंधन ममता जी को बचा नहीं पाएंगे। वो इसीलिए हुमायूं को जन्म दिया, जो बीजेपी में डायरेक्ट वोट ना आके वोट जो रुष्ट तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ जो वोट है वो वोट हुमायूं में चला जाए तो सस्ती मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं इस बार जो लोग ठान लिया बंगाल का जनता, बंगाल का सारे नष्ट करने का जिम्मेदार ममता बनर्जी है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे बंगाल का जनता। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल में इस बार मोदी जी का शासन प्रतिष्ठा होगा। पूरा देश में मोदी जी है, हमारा बंगाल में भी मोदी जी आएंगे, कारण बंगाल का जनता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मोदी जी से, विश्वास करते हैं मोदी जी से। इस बार मोदी जी का गारंटी पर बंगाल का सारे जनता विश्वास जता रहा है। এদিকে যে বাবর পুত্র হুমায়ুন কবিরের কথা উল্লেখ করেছেন বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা, সেই হুমায়ুনের জন্য বুধবার ছিল একটি বিশেষ দিন। এদিনই কলকাতার একটি 5 তারা হোটেলে এআইএমআইএম সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে জোট ঘোষণা করেন তিনি। মিম প্রধান জানান, তিনি হুমায়ুনকে বাংলার উপমুখ্যমন্ত্রী নয়, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখাতে চান বা দেখতে চান। সাংবাদিক বৈঠকে মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসিকে প্রশ্ন করা হয়, বিজেপিকে সুবিধা করে দেবে এআইএমআইএম, এই জল্পনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে ওয়েসি বলেন, 2016 সালে বিজেপির 3 জন বিধায়ক ছিল, এখন বিজেপির 77 জন। এই বিধায়কদের কি আমি জিতিয়েছি? আমার জন্য হয়েছে? এটা তো আপনাদের চোখের সামনে হয়েছে। এরপরই ওয়েসি বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলন যখন হয়েছিল তখন তিনি ও আব্দুল ওয়াহাব দিল্লি থেকে এসেছিলেন। গোটা দেশ থেকে মুসলিম সাংসদরা আসতে চাইছিলেন, কিন্তু বামফ্রন্ট কেন্দ্রের মনমোহন সিংকে বলে আটকে দেয়। আমাকে ও ওয়াহাবকে কলকাতা এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছিলেন শুভেন্দু। আমরা মোটর বাইকের পিছনে বসে ঢুকেছিলাম নন্দীগ্রামে, পুরো বাইকে যেতে পারিনি, বোমা ছোড়া হয়েছিল। তখন তো মমতা ব্যানার্জি আমাদের খুব প্রশংসা করেছিলেন। এরপর এখন খারাপ হয়ে গেলাম। এটাই হলো সুযোগ সন্ধানী রাজনীতি। তো এই প্রসঙ্গে আসাদুদ্দিন ওয়েসি কি বলতে চেয়েছেন একবার শুনে নিন। Parliament, Kollan Bandyopadhyay, he is saying that Meme is the agent of BJP party. And who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से है वो आदमी? वो कल्याण टीएमसी कल्याण team and C team. हाँ, डेपुटी लीडर था। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का हुआ, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को।
कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, एसआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया। नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे। और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे, तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। और ये इलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना, वो नहीं होने वाला है। वासी साहब, ये बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों की? ना, देखिए सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी का सबका इक्वालिटी होगा, बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।